Hello friends, welcome to my channel Prasad Joshi Astro Universe. Today we are going to talk about how the month of July 22 is going to pan out for the Leo Ascendant people. Now first of all, let us look at the Ascendant Lord. Ascendant Lord Sun is passing through the 11th house that indicates social network, elder siblings and friends. So the first half of the month will be spent in engaging with all these people and the subsequent gains from them. Post 15th of July, Sun is going to move to the 12th house, and this will be the time when Leo people will start to feel alone. They would need to look after themselves, avoid taking any key decisions, because whenever the ascendant lord moves through the 12th house, then people end up making wrong decisions. So meditation is going to be very helpful for them in calming the mind. The 12th house is owned by Moon, which again showcases emotions and stability of mind. So therefore, practice of taking meditation in the second half of the month is going to be doubly beneficial for Leo ascendant people. Donations to charity will also be very helpful because any kind of a donations will help in removing the negative energies of this 12th house. So you will see a lot of Leo ascendant people engaging themselves with NGOs or any charities in the second half of July. Leo ascendant people might face such situations in the second half of July where they feel that they are not getting the desired respect from others. These people always crave for the respect. This will be a tough situation for them. My suggestion would be not to get into any kind of a situation where an argument can take place. Avoid any kind of a conflict in the month of July, and you will see that this month will turn out to be very good for you. People who are ambitious, they will see an excellent time at the workplace as 10th lord is passing through the 10th, which is again a benefic like Venus. This passing of 10th lord through 10th is happening till 12th of July. Then Venus will move to the 11th house, which is again owned by a friend called Mercury. So overall an excellent time at the workplace. A lot of people who are belonging to Leo ascendant work with the things that are denoted by Venus. So luxury items, high-end clothing, expensive vehicles, cosmetic perfumes business, people associated with entertainment, cinema, all of these are the areas where a lot of Leo ascendant people work. Good days at the workplace, then 10th, 11th and 12th July will prove to be the best time in the month of July. Leo ascendant people have fixed signs in the quadrant, and quadrant are the most powerful houses in a horoscope. So people who are in Leo ascendant, they should always look for stability in their work frontier. They should always try to stick around and work in a profession or a company for a long time, because switching jobs quickly goes against the nature of Leo ascendant people. And that is why stability is always something that works in their favor. People who are in business will also experience good time because the seventh house lord is passing through seven. But if you want to start a new business, then this is not a good time for you. People who are unmarried will have to wait because they are not getting support of Jupiter, nor is Venus in favor of them in the month of July. We will also look at the Rahu Mars conjunction that is taking place in the ninth house for the Leo ascendant people. This conjunction would indicate differences with your father, teacher, and in general going against the religious norms or establishment. Therefore, people should try to avoid getting into conflict with religious bodies or authorities in the month of July. Ninth house lord in ninth house and associating itself with Rahu, which is an indicator of foreign journeys, also means that some kind of a journey or a long distance journey is bound to take place in the month of July. But if you are planning to take a journey to a religious pilgrimage or a place which is associated with religion, try to avoid it, because Rahu present here will puncture it and will produce problems for you. Otherwise, any kind of a foreign travel is something that will be beneficial for you in the month of July. Let us talk about the fifth house, which showcases students, romance, and speculation. Fifth house lord Jupiter is passing through the eighth house in its own sign. This also means that students will need to work extremely hard and romance is going to take a backseat. When it comes to the stock market, people with the combination of fifth and eighth would mean things happening suddenly. So it could either be a sudden profit or it will be a sudden loss. So that's a very tricky situation if you look at it from the speculation perspective.
because right now the markets are also not conducive to take risk, and therefore it becomes very simple for you that you should avoid any kind of a speculation at this point of time. It will at least help you to protect your base capital in case you face a very sudden loss. There are also certain days when a person needs to be very careful. These days for Leo ascendant in month of July are 1st and 2nd of July, 10th and 11th of July. I have cited two additional days because on 10th and 11th of July, moon is going to be seen by Mars as well as from Saturn. So impact of two malefics on moon on 10th and 11th July makes these 2 days the worst in the next month for Leo ascendant people, 14th to 15th of July and 28th to 29th of July. So in total 8 days where a Leo ascendant person needs to be very careful. 1st and 2nd of July, 10th to 11th July, 14th to 15th July and 28th to 29th of July. So overall, this is going to be a mixed month for Leo ascendant people. The first 15 days are going to be good, but the next half of the month, Leo ascendant people need to focus on health, emotions, and thought process. Meditation and postponing any key decisions during this month would be extremely helpful for Leo ascendant people. So if you have liked my video, please do subscribe to my channel, and thank you very much for watching. नमस्ते दोस्तों, मैं प्रसाद जोशी अपने चैनल प्रसाद जोशी एस्ट्रो यूनिवर्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम देखने जा रहे हैं कि जुलाई 2022 का महीना सिंह लग्न वालों के लिए कैसे साबित होगा। सबसे पहले लग्नेश की बात करते हैं। लग्नेश सूर्य 11वें भाव से गुजर रहे हैं। 11वां भाव आपका सोशल नेटवर्क दिखाता है। जिन लोगों के साथ आप इंटरेक्ट करते हैं सोसाइटी में, उनको, अपने आपके बड़े भाई बहनों को, मित्रों को, और जो भी लाभ होता है उनको। तो जो पहला महीने के पहला 15 दिन है, उनमें तो आप इन्हीं सब चीजों के साथ इंटरेक्ट करते हुए दिखेंगे, इन्हीं लोगों के साथ आप एंगेज करेंगे और उससे आपको लाभ भी होगा। महीने के द्वितीय हाफ में जब सूर्य 12वें भाव में चला जाएगा, तब ये समय सिंह लग्न वालों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। जब भी लग्नेश 12वें भाव से जाता है तो व्यक्ति को अकेलापन महसूस होता है, उनको लगता है कि उनके साथ कोई और है नहीं। अगर वो इस समय कोई की डिसीजंस लेते हैं तो वो भी गलत हो जाते हैं, क्योंकि लग्नेश का 12वें स्थान से जाना यानी आप खुद को नेगेट कर रहे हैं। तो इस समय अगर लियो असेंडेंट वाले लोग मेडिटेशन करते हैं तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि यहाँ पर भी चंद्र की राशि पड़ती है। तो चंद्र भी इमोशंस का कारक है और मेडिटेशन से आपको इमोशंस को कंट्रोल करने में हेल्प मिलती है। सिंह लग्न वालों के लिए मेडिटेशन बहुत ही ज़्यादा उपयोगी रहेगा। इसके अलावा वो चैरिटीज़ को डोनेशन दे सकते हैं, क्योंकि चैरिटीज़ में डोनेशन देने से 12वें भाव की नेगेटिव ऊर्जा को कम करने में मदद मिलती है। तो बहुत से लोग आपके सेकेंड हाफ में लियो असेंडेंट के चैरिटीज से जुड़े हुए भी आपको दिखेंगे। ऐसी कई स्थितियां जुलाई में बन सकती हैं, खास करके दूसरे भाग में, जब व्यक्ति को लगेगा कि उनको रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, सामने वाला व्यक्ति उनको की प्रशंसा नहीं कर रहा है, उनकी इज्जत नहीं कर रहा है। तो इस तरह की सिचुएशन लियो असेंडेंट वाले लोगों के लिए बहुत मुश्किल होती है। मेरा उनको यही सजेशन रहेगा कि किसी भी तरह के लड़ाई झगड़े में मत पड़िए सेकेंड हाफ में, नहीं तो आप अपने लिए और मुसीबत खड़ी कर लेंगे। किसी भी तरह का झगड़ा अगर आप सेकेंड हाफ में अवॉइड करते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अभी कार्यस्थल की बात करते हैं। दशमेश दशम भाव से ही गुजर रहा है, वो भी शुक्र जैसा प्लैनेट। 12 जुलाई तक ये यहीं बैठेगा और 13 जुलाई से 11वें भाव में चला जाएगा। 11वां भाव का ओनर बुध है, जो कि फिर से शुक्र का मित्र होता है। तो अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो कार्यस्थल के लिहाज से जुलाई बहुत अच्छा महीना साबित होगा सिंह लग्न वालों के लिए। बहुत से सिंह लग्न के लोग जो भी शुक्र के एरियाज होते हैं उसमें आपको काम करते हुए दिखते हैं, यानी कि हाई एंड की क्लोथिंग हो गई, व्हीकल्स हो गए, परफ्यूम्स हो गए, इसी तरह की बातें जो आपको शुक्र से दिखाई जाती हैं। इन सारी व्यवसायों में आप इन लोगों को जनरली एंगेज देखते हैं। अगर हम कार्यस्थल के अच्छे दिनों की बात करेंगे तो 10, 11 और 12 जुलाई ये 3 दिन ऐसे हैं जब सबसे बेहतरीन समय होगा सिंह लग्न वालों के लिए जुलाई में। देखिए, सिंह लग्न वालों के लिए जो हम केंद्र स्थान बोलते हैं, जो कि कुंडली के सबसे ताकतवर स्थान होते हैं, इन सब जगहों पे स्थिर राशियां पड़ती हैं। इसलिए अगर सिंह लग्न के लोग बहुत ज़्यादा नौकरियां बदलते हैं या कार्यस्थल पे बहुत ज़्यादा उनको चेंजेस देखने को मिलते हैं, तो ये इनके लिए बहुत मुश्किल साबित होता है। क्योंकि अगर आप नेचर देखें, जिस तरह से एनर्जीज का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये लोग अगर किसी एक जगह पे टिक के लंबे समय तक काम करते हैं तो इनके लिए हमेशा ही अच्छा रहता है, बजाय इसके कि वो चर राशियों की तरह बार बार नौकरियां बदलते फिरे।
ये सिंह लग्न वालों के लिए कभी भी अच्छा साबित नहीं होता। तो अगर एक ही जगह पे टिक के लंबे समय तक काम करते हैं तो सिंह लग्न वाले लोग काफी ऊपर उठ सकते हैं। अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हैं तो सप्तमेश सप्तम से ही गुजर रहे हैं और शनि वक्री होके वापस जा रहा है छठे भाव की तरफ, तो बिजनेस में आने वाली कठिनाइयां भी कम होंगी। लेकिन अगर आप नया बिजनेस चालू करना चाहते हैं तो ये उसके लिए अच्छा समय नहीं रहेगा, क्योंकि गुरु का भी सपोर्ट नहीं है। इसी तरह अगर आपकी शादी नहीं हुई है और आप शादी करना चाहते हैं तो ना तो गुरु का सपोर्ट मिल रहा है और ना ही शुक्र का सपोर्ट मिल रहा है। सिंगल लोग हैं उनको अभी और इंतजार करना पड़ेगा। अभी राहु मंगल की युति इस महीने सारे लग्नों को ही परेशान करेगी। सिंह लग्न वालों के लिए जुलाई में ये युति नवे भाव में बन रही है। नवा भाव आपका पिता को दिखाता है, लंबी दूरियों की जर्नीज को दिखाता है और रिलीजन को दिखाता है। तो जब ये युति बनती है जुलाई के महीने में, या आपके पिता के साथ, आपके गुरु के साथ, और कोई भी अगर आप रिलीजियस बॉडी से एसोसिएटेड हैं उनके साथ भी मतभेद क्रिएट करेगी। नवा भाव का स्वामी नवम भाव में ही बैठा हुआ है राहु के साथ। राहु हमेशा फॉरेन जर्नीज को दिखाता है। तो अगर आप कोई भी ऐसी यात्रा करते हैं किसी फॉरेन कंट्री में तो ये आपके लिए काफी अच्छी साबित होगी जुलाई के महीने में। लेकिन अगर आप कोई भी रिलीजियस काम के लिए ट्रैवल करते हैं तो राहु यहाँ पे नवम भाव में बैठ के इसमें छिद्र करेगा। तो ट्रैवल कोई भी सा भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा रिलीजियस ट्रैवल को छोड़ के जुलाई के महीने में। अभी हम लोग पांचवें भाव पे आते हैं। पांचवें भाव से आप शिक्षा देखते हैं, स्पेक्यूलेशन देखते हैं, रोमांस देखते हैं। अब पंचमेश अष्टम से गुजर रहे हैं, हालांकि अपनी राशि से वो लोग गुजर रहे हैं। तो भी इसका अर्थ यहाँ ये होगा कि स्टूडेंट्स को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी जुलाई के महीने में, और रोमांस को तो भूल जाना पड़ेगा सिंह लग्न वालों को। अगर आप शेयर बाजार की बात करते हैं तो जब भी पंचम का संबंध अष्टम से बनता है तो या तो व्यक्ति को अचानक से लाभ होता है या हानि होती है। अचानक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप स्पेक्यूलेशन में हैं तो बहुत ही ट्रिकी सी सिचुएशन है, क्योंकि फिर क्या करें क्या ना करें। तो मेरा सजेशन ये है कि आप अपनी कैपिटल को बचा के रखिए जुलाई के महीने में। वैसे भी बाजार की स्थिति अभी कुछ खास अच्छी नहीं है, तो अगर आप सडन लॉस ले लेते हैं तो आपको आगे कैपिटल निकाल पाना मुश्किल हो जाएगा वापस से मार्केट से। इसलिए शेयर बाजार से भी आप दूर रहिए इस महीने में, ऐसा मेरा सजेशन होगा। अब ऐसे कुछ दिन होते हैं जब व्यक्ति को बहुत सावधान रहना पड़ता है हर महीने। सिंह लग्न वालों के लिए दिन है 1 से 2 जुलाई। चंद्र 12वें भाव से गुजरेगा। 10 और 11 जुलाई, 10 और 11 जुलाई को मंगल 8वीं दृष्टि से चंद्र को देखेगा, शनि 10वीं दृष्टि से देखेगा, और ये दोनों ही प्लैनेट्स मंगल और शनि चंद्र के दुश्मन है। तो 10 और 11 जुलाई सबसे दो बकवास दिन साबित होंगे सिंह लग्न वालों के लिए जुलाई के महीने में। इसके अलावा 14-15 जुलाई और 28-29 जुलाई भी सावधानी बरतने वाले दिन है। कुल मिला के 8 दिन, 1-2 जुलाई, 10-11 जुलाई, 14-15 जुलाई और 28-29 जुलाई, इनको कहीं पे आप नोट कर लीजिए। और इन दिनों में कोई डिसीजन मत लीजिए महत्वपूर्ण, किसी के साथ झगड़िए मत। अगर आप कुल मिला के देखेंगे तो ये बहुत मिला जुला महीना है। महीने के पहले 15 दिन अच्छे हैं सिंह लग्न वालों के लिए, लेकिन जैसे ही ये लग्नेश 12वें भाव में मूव कर जाएगा 16 जुलाई से 31 जुलाई तक के समय में, तो उनको अपनी सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा, अपने भावनाओं पर कंट्रोल रखना पड़ेगा। तो इसके लिए आप मेडिटेशन कीजिए और सारे डिसीजंस अगले महीने के लिए टाल दीजिए, ऐसे डिसीजन जिनका आपके जीवन पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। तो ये महीना आपका अच्छा निकलेगा। कार्यस्थल पे ये महीना बेहतरीन है। ये समरी थी जुलाई की सिंह लग्न वालों के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।